الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بابا زمان علیہ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سامع محترم، حالات حاضرہ سے بے خبر ہو کر اگر گفتگو کی جائے تو تئی دامنی کا احساس ہوتا ہے. وہ لوگ یہ احساس ندامت کرے جن کے دامن میں محبت نام کی کوئی چیز نہ ہو. آج دنیا اس سطح تک تو پہنچی کہ محبت کے جذبے کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے اس کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ گزر جائے، اس کی یاد منانا چاہیے، اسے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کہاں تک جائز ہے کہاں تک ناجائز ہے. بات جائز اور ناجائز کی نہیں دیکھنا، بات تو ایک جذبے کو صداقت کے ساتھ منانا ہے. وہ جذبہ مسلمانوں کا نہیں، عیسائیوں کا نہیں، ہندوؤں کا نہیں. اس جذبے کا تعلق انسانیت سے ہے، اور جس جذبے کا تعلق انسانیت سے ہے وہ یہ دنیا چاہتی ہے کہ اس جذبے کو شان کے ساتھ منایا جائے. ممبر پر بیٹھا ہوں، بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سے لفظوں کو استعمال نہیں کر سکتا، اور آپ بھی بزدل رہیں. جب تک میں استعمال نہیں کروں گا آپ بولیں گے نہیں. بزرگان محترم، آپ میرے ساتھ بولیے تو میں 10 منٹ میں اتر جاؤں گا. میں 1.25 گھنٹے گفتگو کروں گا اس موضوع پہ. آواز بلند آ رہی ہے. یہ جو جذبہ محبت ہے ایک بنیادی اصول ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت ہے. حضرت زئی صاحب کے 2 جملے آج کی مناسبت سے کہ اللہ نے کہا، ہر کوئی کہتا ہے، ان کا جملہ اگر پوری طرح ادا کر دوں تو ریکارڈ بھی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈرا کرو. اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو محبت کرنے والی چیز ہے. ڈرتے تو اس سے ہیں جس سے خوف آتا ہو. وہ تو 70 ماؤں جیسی محبت کرنے والا ہے. لیکن مثال دی ہے کہ 70 ماؤں سے، یعنی ماں کی محبت کا اندازہ نہیں ہے. 70 درجے اس لیے بتایا ہے کہ تم ماں کی محبت کا اندازہ کر لو، پھر اس کے بعد درجے تک آنا. 70 درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک محدود 70 درجے تک محدود اللہ کی محبت. نسبت ماں کی محبت سے دی ہے. ساری کائنات مل کر کسی ایک ماں کی محبت کے حد کا تعین نہیں کر سکتی. تو جو ایک ماں کی محبت کے حد کا تعین نہ کر سکے وہ اللہ کی محبت کے حد کا کیا تعین کرے گا؟ اچھا، اب یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں. اللہ جن کی مائیں سلامت ہے ان کو سلامت رکھے، اور جو دنیا سے گزر گئی آج ان کی اصحال ثواب کے ذہن میں یہ جملے ذہن میں آ رہے ہیں. اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی ماں کی محبت کا تعین نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لافانی جذبہ ہے، رشتہ ہے کہ ایک ماں کی محبت کا تعین نہیں ہو سکتا، کوئی مثل نہیں بنا سکتا. تو جب ایک ماں کی مثل نہیں بنا سکتا تو اللہ کی مثل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ زئی صاحب کا جملہ ہے، محبت اظہار مانگتی ہے، تجسیم مانگتی ہے. محبت چہرہ دیکھنا چاہتی ہے. اللہ نے کہا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو. موسیٰ تمہیں مجھ سے محبت ہے، کوہ طور تک آؤ. ایک جھلک دیکھی، طور سرما ہو گیا. موسیٰ کی آنکھوں کو چین نہیں آیا. اسے تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قاب قوسین کی حدوں میں بلایا، 2 کمانوں کا فاصلہ رکھ کر محبت کا اظہار کیا. لیکن وہ جو عام انسان ہے وہ محبت کیسے کرے اللہ سے جب اللہ محبت کرنے کی چیز ہے؟ تو کہا گھبراؤ نہیں، میں کچھ شکلیں بنا دیتا ہوں. تم جیسے لوگوں میں، تمہارے جیسے چلتے پھرتے لوگوں میں کچھ ایسی چیزوں، ایسی ہستیوں کو بھیج دیتا ہوں جن کے چہرے موڑے تو تمہارے جیسے ہوں گے، لیکن فرق کیا ہوگا کہ عبادت میری کرو گے، محبت ان سے کرو گے. محبت کرنا
चाहते हो, तुम मोहब्बत करना चाहते हो, तो मोहब्बत का इजहार ये है कि मुझसे मोहब्बत करने के लिए जहाँ मूसा जैसा नबी ताब ना ला सके, इब्राहिम जैसा नबी ताब ना ला सके, उसमें मोहम्मद मुस्तफा जैसी हस्ती के लिए 2 कमानों का फासला रखे, वहां तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो मैं कुछ हिस्से अपने नूर से जुदा करके बना देता हूं। मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है, मैं आला हूं, ये अली है, मैं फातिरुल समावात हूं, ये फातिमा है, मैं एहसनुल कदीम हूं, ये हसनैन है। इबादत मेरी करो, मोहब्बत इनसे करो। तो बुज़ुर्गान इकराम में बस एक सवाल है, इसके लिए सारी ज़हमत दी है। मोहब्बत के लिए बनाया इसलिए कि ये ना समझना कि तुम्हारे जैसे इंसान हैं, बनाया इसलिए है कि तुम्हें मेरी इबादत का भी शौक है, मुझसे मोहब्बत का भी शौक है। तो याद रखो ये 2 चीजें अलग नहीं है। मेरी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक इनसे मोहब्बत ना करो। मोहब्बत का एक म्यार है, जब तक इनकी मोहब्बत ना हो। अब मैं तेजी से गुजर जाऊंगा। अगर दुआ में इनकी मोहब्बत ना हो तो दुआ रद्द कर दी जाएगी, नमाज में इनकी मोहब्बत ना हो तो ये नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। एक दफा आवाज़ बुलंद, ये सब गोशे हैं बुजुर्गान मोहतरम। अज़दारी, करबला वो गहवारा है जिसमें मोहब्बत की तमाम तर सूरतें मौजूद हैं। समझ रखिए बुजुर्गान मोहतरम, मोहब्बत एक इंसानी जज्बा है, इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा है। इसके शक्लें मुख्तलिफ हैं लेकिन जज्बा है। इंसान को जांचने का जो पैमाना है वो बच्चे हैं। बच्चे किस लिए पैमाना है कि बच्चे मासूम होते हैं, इनसे गुनाह का इम्कान नहीं होता। तो मुसलमान ये तो माने ना कि पैमाना उसे बनाया जाते हैं जिससे खता का इम्कान ना हो। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि अगर फितरत का मुशाहिदा करना हो तो बच्चों को देखो। अब बच्चों का अंदाज क्या है, घर में चंद बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर का कोई आदमी आ जाए तो इकट्ठा हो जाएंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे। कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नापसंद है, कुछ चेहरे पसंद, जितना आप मुझसे पढ़ाएंगे बुजुर्गान इकराम उतना मैं पढ़ूंगा। कुछ चेहरे पसंद है, कुछ चेहरे नापसंद हैं। अब कोई पूछे कि पसंद वाले चेहरे कौन से हैं, नापसंद वाले चेहरे कौन से हैं, इन्हें बताया किसने? का इन्हें फितरत ने सिखाया। जो अपना होता है वो चेहरा पसंदीदा होता है, जो गैर होता है वो पसंदीदा नापसंदीदा चेहरा होता है। बस बुजुर्गान इकरामी, जब बच्चों की ये फितरत है कि कुछ चीजें पसंद की हैं, कुछ नापसंद की हैं, ये फितरत का हिस्सा है। शरीयत ने इन्हीं दोनों जज्बों को नाम रख दिया। जो पसंद हो उन्हें तवल्ला कहते हैं, जो नापसंद उन्हें तबर्रा कहते हैं। कि जो पसंद है जिन्हें करीब करना। और एक मिसाल से वाज़ेह कर लूं, शायद पहले भी दी हो लेकिन बच्चों को समझाने के लिए। ये पूरी कायनात का जो निजाम शमसी है इसका दारोमदार 2 कुव्वतों पर, एक कुव्वते दाफिया और एक कुव्वते जाज़बा। एक दूर करने की कुव्वत, एक करीब करने की सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक दाफिया दूर करने की और एक करीब करने की। किसी माहिर से पूछें कि देखिए करीब करने की कुव्वत तो अच्छी चीज है लेकिन किसी को दूर नहीं करना चाहिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जरा निजाम शमसी में किसी एक कुव्वत को खत्म करके देखें या कम करके देखें, पूरा निजाम शमसी जमीन दोष हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जब आम कायनात के निजाम के लिए 2 कुव्वतों के तवाज़ुन की जरूरत है, इसी तरह अकीदे का एक निजाम है, उसके लिए भी 2 कुव्वतों के तवाज़ुन की जरूरत है। एक तवल्ला की कुव्वत है, एक तबर्रा की कुव्वत है। और ये जब तक दोनों बराबर नहीं होंगी अकीदे का निजाम। देखिए 10 मिनट आपने मुझे दिया है लेकिन मौजू कहीं और चला जाएगा। विलायत अली इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील से
اتنا آسان موضوع نہیں ہے. ناصر عباس کے جملے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول تم علی کی ولایت کا اعلان کرو اور گھبرانا نہیں، ہم تمہیں دشمنوں کے شر سے بچائیں گے. وہ جو رسول دین کی تعلیم دے رہا ہے کبھی نہیں کہا، بدر میں کبھی نہیں کہا، خندق میں کبھی نہیں کہا، خیبر میں کبھی نہیں کہا. وہاں بھی تو شر تھا، وہاں کفار کا شر تھا، وہاں نہیں کہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے. بدر میں، خیبر میں، خندق میں، غار میں کہیں نہیں کہا کہ ہم تمہیں بچائیں گے، اس لیے کہ وہاں بھی شر تھا. لیکن ولایت علی کے اعلان میں کہا کہ گھبرانا نہیں، ہم تمہیں اس کے شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب ہے ولایت علی پھولوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے، کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے. خطرات اس میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اور جتنے خطرات ہیں اس میں اللہ نے بچانے کا وعدہ نہیں کیا. لیکن جب ولایت علی کا اعلان کیا، ناصر عباس کے جملہ کر رہا ہوں کہ جب علی کے ولایت کا تم اعلان کرو گے تو تمہیں خطرات ہوں گے، ان سے گھبرانا نہیں، ہم تمہیں اس خطرات سے بچانے والے ہیں. ایک چیز تو کار رسالت میں ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں کہ جب رسول علی کا ذکر کرے ولایت کا، اس کے خطرے کو اللہ بچا سکتا ہے، تو ہم اگر علی کی ولایت کا تذکرہ کریں تو ہمیں اللہ بھی بچائے گا، اللہ کا رسول بھی بچائے گا. آسان کام نہیں گزرا محترم. اور علی کی ولایت کا جتنا جھگڑا ہے، 10 منٹ ہے ختم کر رہا ہوں، جتنا جھگڑا ہے وہ اسی ایک محبت پہ. علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ شرم نہیں آتی مسلمانوں کہ پوری دنیا محبت کا دن منائے تو اس میں دو رائے رکھتے ہیں کہ اسے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک علی کی محبت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں دو واضح شکلیں ہیں. علی کی محبت اجتماعی طور پر منانے والی چیز نہیں ہے کہ اجماع کر کے منا لے، اکثریت فیصلہ کر لے. عام محبتیں اجماع کے طور پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، آپ کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن علی کی محبت اجماع سے فیصلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ آپ کی کثرت سے نہیں ملتی، وہ اللہ کو نعمت کے طور پہ عطا کرنی ہوتی ہے. جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. دعا کیا کیجیے، علی کی محبت ملی ہے، مشکل منزلیں، دعا کیجیے کہ قبر کی منزلوں تک یہ محبت سلامت رہے. ابھی یہ مسئلہ کی جعفریہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ولایت علی کا تعلق فشار قبر سے کیوں ہے کہ علی قبر میں آئیں گے. یہ ایک الگ بحث ہے، آئیں گے نہیں آئیں گے. دعا کیجیے، ہم مانتے ہیں آئے، اللہ کرے آئے. آپ نہیں مانتے، اللہ نہ کرے علی آپ کے قبر میں آئے. بزرگان محترم دعا کرنا ہے نا، دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. زید صاحب کو جملہ تھا، اگر سب کچھ علی کی محبت نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ دنیا میں جو ہم نے کام کیا، جہاں اور بہت ساری محنت بیکار گئی، وہاں یہ بھی بیکار گئی. لیکن اگر وہاں جا کے پتہ لگا کہ ہے ہی علی کی محبت سب کچھ، تو یہ بتاؤ جو خالد احمد ہے وہ اپنا منہ پیٹیں گے یا سر پیٹیں گے؟ بس چھوٹی سی بات ہے، بدقبرے میں بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ خطرہ غیروں سے نہیں اپنوں سے زیادہ ہے. نصیری بخشا جائے گا لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا. شعر آپ نے سن لیا. منافق کی پہچان کیا ہے؟ نماز کی صف ہے، چہرے پر ماتھے پر محراب کا نشان بھی، لیکن آپ تعین نہیں کر سکیں گے کہ منافق ہے یا مومن ہے. روزہ دار ہے، روزے کی میز پر، افطار کی میز پر تعین نہیں کر سکیں گے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. نماز یہ بتائے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، روزہ یہ بتائے گا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. لیکن منافقت کی پہچان اور کسی عبادت سے نہیں ہے. ایک عبادت ہے جو بے شمار کی عبادت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. اسی لیے علی کی ذات کو پیمانہ بنایا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. لیکن منافقت کہتے کس کو؟ مختصر ترین تعریف،
वो अमल जो छुपा हुआ हो, वाज़ेह ना हो, आपके सामने बैठा हो, आपसे ज्यादा अली अली कर रहा हो, आपसे ज्यादा हमदर्द हो, लेकिन अंदर से वो कुछ और हो, इसे मुनाफिक कहते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, अली की मोहब्बत का ताल्लुक बाहर से नहीं है, अंदर से है। दुनिया में जितनी रियासतें हैं वो अंदर की बीमारी जानने पर, इसलिए कि जब तक अंदर की बीमारी का पता नहीं लगेगा उसका इलाज कैसे होगा। बुजुर्गान गिरामी, जब आज की तबीब अंदर की बीमारी जानने के लिए कोशा है कि उसका इलाज हो, तो इंसान सेहतमंद हो, तो हमारे मसीहा ने 1400 साल पहले बता दिया था कि अंदर से सेहतमंद है या बीमार है, इसको जानने के लिए दवाओं की जरूरत नहीं है। उसके सामने अली का नाम लो, उसका चेहरा बता देगा मरीज है या नहीं है। बुजुर्गान गिरामी, पूनम कह के चले गए कि मैं काफिर की इयादत कर लेता हूं, मुकस्सिर की इयादत नहीं करता हूं। शायर है, शायर का कमाल, और ये बगैर पैसों वाला शायर है, इसलिए असर भी है। बुजुर्गान मोहतरम, देखिए इयादत किस लिए करते हैं, इयादत इसलिए करते हैं, रसूल की हदीस भी मौजूद कि आपकी इयादत से वो जो आर्जी मरज किसी को लाहक है वो आपके इयादत करने से दूर हो जाएगा। अल्लाह इसको पसंद करता है कि बीमारों की इयादत करें ताकि उसे शिफा मिले और उसे आराम भी मिले। इयादत हमेशा आर्जी मरीजों की होती है, जिसे आर्जी मरज हो उसकी इयादत की जाती है, दायमी मरीजों की इयादत नहीं की जाती, इसलिए कि आर्जी मरज दूर होने का खतरा है, दायमी मरज लग जाने का खतरा होता है। ये जो बाबा इतना शुक्रिया आपका, इतना साथ दे देते हैं, वरना 12 साल की मुसलसल समाखराशी कहाँ तक आपको ले जाएगी, कहाँ तक मुझे ले जाएगी। बस आके मोहब्बतों को देखना है, जज्बों को देखना है। दुनिया अलग अलग जज्बों को मनाती है। इश्क रसूल के दीवाने कभी ये क्यों नहीं सोचते क्या और रसूल से मोहब्बत का दिन मनाए। रईस साहब का जुमला है, शब रिसालत के परवानों को क्या पता मोहब्बत होती क्या है। महफूज कर लीजिएगा जुमले। कहते हैं शम्मा जल रही है, परवाना उसके गिर चक्कर लगा रहा है, तो ये ना समझिए कि परवाने को शम्मा से मोहब्बत है। मोहब्बत का पता कब चलेगा, जब शम्मा गुल होगी। देखिए लफ्ज़ है जैदी साहब आपके हवाले का, जब शम्मा गुल होगी तब पता लगेगा कि किसको मोहब्बत है, किसको मोहब्बत नहीं है। उसका तरीका क्या है कि शम्मा गुल हो और उसके कदमों में उसकी लाश पड़ी हो तो वो परवाना है, वरना अगर शम्मा गुल हो मैयत छोड़कर किसी और जगह चला जाए तो वो परवाना नहीं है। इसलिए शम्मा रिसालत के परवानों को देखना पड़ेगा कि जब शम्मा रिसालत गुल हुई तो वो कहां थे। बस दो जुमले। ये करबला है जिसने आपको बताया जज्बा क्या है। आज का दिन मोहब्बत के जज्बे को मनाना है। वो लोग जो करीब हों, पास हों, उनकी मोहब्बत का अंदाज और होता है। लेकिन खुदा ना करे कि कोई ऐसी बीमार हो जिसके सारे रिश्ते घर से बाहर हो, बुजुर्गान मोहतरम, और बीमार भी ऐसी हो कि काफिला जब जाने लगे तो हर एक से पूछती जाए क्या जाने वालों में मेरा नाम भी है, बहन सकीना तुम्हारा नाम भी है, भैया अली अकबर तुम्हारा नाम भी है, भैया कासिम तुम्हारा नाम भी है। हर एक से पूछती जाती है क्या उसमें मेरा नाम भी है। लेकिन मसले तमाम है, सब खामोश हैं, कोई जवाब नहीं देता। एक भैया 4 दिन के भाई को गहवारे में देखा, गहवारे के करीब बैठ गई, भैया अली असगर और तो सब चले जाएंगे मुझे छोड़कर, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम मेरे पास रह जाओगे। भैया अली असगर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे कपड़े मैं बनाऊंगा, तुम्हें ग़िज़ा मैं खिलाऊंगा। बस बुजुर्गान गिरामी 4 या 6 दिन के अली असगर के ये लफ्ज़ सुने, बेसाख्ता अपनी बाहें फैला, इधर बाहें फैलाई, बहन ने सीने से लगा लिया। बुजुर्गान गिरामी ज़ुहरा ने
जब अपने 6 दिन के भाई को सीने से लगाया तो जैसे बीमार को सुकून मिल गया। हाँ भैया अली असगर तुम मेरे पास रहोगे। काफिला तैयार हुआ, एक एक बीबी आगे बढ़ी, आओ अली असगर मेरी आगोश में आ जाओ। 6 महीने का अली असगर है बुजुर्गान मोहतरम, लेकिन जज्बों को कैसा समझता है। 6 दिन का अली असगर है। माँ आगे बढ़ी, तुम जनाब उम्मे रबाब आगे बढ़ी, आओ अली असगर मेरी आगोश में आ जाओ। अली असगर ने पलट के नहीं देखा माँ की तरफ। बच्चे माँ की आवाज से मानूस होता है ना, लेकिन इस 6 दिन के अली असगर ने पलट के देखा नहीं। ज़ैनब आगे बढ़ी, आओ अली असगर मेरी आगोश में आ जाओ। एक एक बीबी आगे बढ़ती गई बुजुर्गान गिरामी। जब असगर ने पलट के नहीं देखा ना, मेरी चश्मे तसव्वुर कहती है 4 साल की बहन आगे बढ़ी होगी, और भैया अली असगर मेरे आगोश में आ जाओ। लेकिन अली असगर ने पलट के नहीं देखा। बुजुर्गान गिरामी इमाम का हुक्म है बीमार को सत्ता नहीं पहुंचाना। किसी ने जबरदस्ती नहीं की, किसी ने जबरदस्ती अली असगर को लेने की कोशिश नहीं की। इमाम हुसैन के कानों तक ये खबर पहुंची। इमाम हुसैन ने कहा अली असगर को और कोई गोद में ना ले। वहां से इमाम हुसैन ने चलना शुरू किया। यहाँ बीमार ने दुआ की, बस अगर बाबा की गोद में भी ना दिया तो मैं जानती हूँ कि बाबा जिद नहीं करेंगे, बाबा जबरदस्ती नहीं करेंगे। बीमार के चेहरे पर एक अजीब इस्तराब आ रहा था, अजीब रंग आ रहा था, आता जाता हुआ रंग था। हुसैन के कदम आगे बढ़ना शुरू हुए। हुसैन के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, सुगरा के सीने पे पड़ रहे थे। ऐसा ना हो कि ये बाबा मुझसे बाबा अली असगर को वापस ले जाए। हुसैन करीब आए, बीमार के चेहरे की तरफ देखा, सिमटे हुए अली असगर की तरफ देखा। बुजुर्गान गिरामी हुसैन ने हाथ नहीं फैलाए, हुसैन ने कुछ कहा नहीं, चूंकि जैसे कुछ प्यार कर रहे हो। कान के करीब जाके कुछ कहा। बुजुर्गान गिरामी बस एक जुमला कहा था, वो अली असगर जो पलट के माँ की तरफ नहीं आया, बहनों की तरफ नहीं आया, बेसाख था, सुगरा की गर्दन से बाहें जुदा की, हुसैन की आगोश में आ गया। बीमार का चेहरा मुरझा गया। बस एक जुमला का सुगरा ने, बाबा अली असगर को लेके तो जा रहे हैं, बस इतना बता दे कि आपने अली असगर के कानों में क्या कहा। मेरी चश्मे तसव्वुर कहती है करबला की पहली मंजिल मदीने में बर्पा हुई होगी। क्या जुमला कहा था बेटा सुगरा, मैंने अली असगर से और कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि जहां मैं जा रहा हूं वहां अगर तेरा खून शामिल न हुआ तो मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। दिल पे हाथ रखकर मोहब्बत करने वाले साहिबान औलाद सोचे बीमार से क्या कह के गए हैं कि जहां मैं जा रहा हूं वहां तेरा खून शामिल न हुआ तो मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अरे बीमार 1 साल तक इंतजार करती रही कब मेरे बाबा लौट के आएंगे, लेकिन जहन में ये बात थी ना, यही वजह थी, रह रह के याद करती थी, रोज़े रसूल पे जाती थी। नाना अब तो मेरा अली असगर वीडियो चलता होगा, नाना अब तो मेरा अली असगर मेरा नाम सुनकर उमड़ता होगा। यही वजह है कि जब उस कासिद को खत लिखा तो उस खत में जहां और बातें लिखी वहां चंद जुमले लिखे थे कि बाबा जब मेरा अली असगर घुटनियों चलने लगे अब तो असगर भी मेरा घुटनियों चलता होगा। मेरे भैया को मेरा नाम बताना बाबा, और नाम सुनकर मेरा हुक्म तो तुम्हें मेरी कसम मेरी जानिब से कलेजे से लगाना बाबा। जमाना गुजरा, साल गुजरा, एक काफिला मदीने की तरफ लौटा। किसी ने कहा हुसैन का काफिला लौट आया। वो जो बिस्तर पे बीमार पड़ी थी ना, यकबयक जान आई, चेहरे पर खुशी के आसार आए, असर का सहारा लिया। नानी उम्मे सलमा जल्दी चलो, नानी उम्मे सलमा मेरा असगर लौट आया है। अब जो पहुंची सुगरा देखा 3 ऊंटों पर सफेद बालों वाली बीवियां है, एक कबर हमीदा सारवान है। एक दफा सुगरा ने हाथ छुड़ाया, ज़ैनब की आगोश में देखा, रबाब की आगोश में देखा, जब बीवियों की आगोश में कुछ नजर नहीं आया, वहां से पलटी जहां ऊंट खड़े थे वहां कुछ तलाश किया। ज़ैनब ने पूछा सुगरा किसे तलाश कर रही हो? कब पुपी अम्मा आप मुझसे एक असगर ले गए थे, मेरा 6 महीने का असगर, पुपी अम्मा नजर नहीं आती। ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, रुख कर करबला की तरफ किया, भैया हुसैन मुझसे सुगरा असगर मांग रही है, बता मैं सुगरा को क्या जवाब। हमारे से मदद कबूल फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो चश्मगिरिया के साथ इस पर शहदा में बैठ के दुआओं को मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे इस शहजादे का वास्ता परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से सरफराज फरमा। परवरदिगार जो बेरोजगार हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो बच्चे सारा साल मादर हुसैन को पुरसा देने के अमल में मसरूफ रहते, परवरदिगार
ان मातमियों पे चादर ज़हरा का साया सलामत रख। परवरदिगार उन घरों को क़यामत तक आबाद और शाद रख जहाँ पर शहदाए हुसैनी बिछती है, जहाँ हुसैन का तज़किरा हो। परवरदिगार तुझे उस माँ का वास्ता जिसने दामन फैलाकर घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आते हुए हुसैन को लेकर एक जुमला कहा था, क्या इश्क़ मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने हुसैन को चक्किया पीस पीस कर कहा था। परवरदिगार तुझे उस माँ का वास्ता माँओं के कलेजे ठंडे रहे, जो बीमार है शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा, जो मक़रूज़ है कर्ज़ से नजात दिला। बादल साहब को अल्लाह सेहत कामिल और आजिला अता फरमा, और जो बीमार हैं अमीर साहब अरमान हमारे नवा खां हैं, उनकी वालिदा बहुत अलील हैं। परवरदिगार तमाम बीमारों को बीमार मदीना जनाब सुकरा का वास्ता उन्हें शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का दुश्मनों के शर से महफूज रख। अकीदे की कोपलों को जहरीली हवाओं से महफूज रख। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जहाँ जहाँ हमारे मोमिन उनकी महाफ़त फरमा। ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इश्ताक़ ज़रबी, शाह नासिर, इसरार ज़रबी और जो मरहूमीन इस दुनिया से रुख़सत हुए उन सबको दोबारा जन्नत नसीब हो जगह अता फरमा। एक दफ़ा सूरह अलहम और 3 दफ़ा सूरह इख़लास इश्ताक़ ज़रबी साहब, शाह नासिर साहब, इसरार ज़रबी साहब और जो मरहूमीन की